கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु यीशु मसीह का नाम को धन्यवाद. தேவனுக்கே துதி கன மகிமை உண்டாவதாக. महिमा और स्तुति परमेश्वर को ही होगा. இயேசு ஆசீர்வதிக்கிறார் நேரம் என்ற நிகழ்ச்சியில் நாம் இணைந்திருக்கிறோம். आज हम प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष करता करके एक प्रोग्राम में शामिल हैं. ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மோடு கூட பேச போகிறார். आज प्रभु हमारे साथ बातचीत करने वाला है. மெய்யான தேவன் இயேசு, सच्चाई परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है. ஆசீர்வதிக்கிறார் திருச்சபையிலிருந்து உங்களுக்கு செய்தியை கொண்டு வருகிறோம். आशीर्वाद गलीशिया की ओर से इस सुसमाचार को हम सुनाते हैं. நாம் தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். हम लगातार परमेश्वर का वचन को सुनते आ रहे हैं. லட்சக்கணக்கான ஆசீர்வாதங்கள் வேத புத்தகத்தில் இருக்கிறது. हजारों तरह का आशीर्वाद इस परमेश्वर का पुस्तक में लिखा हुआ है. இதிலிருந்து ஒரு வார்த்தையை நாம் தியானிக்க போகிறோம். आज इनमें से एक वचन को मैं आपको प्रकट करना चाहता हूं. சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் 85வது சங்கீதத்தை நாம் கவனிப்போம். भजन संगीता 28 का 12वीं वचन को हम सुनने जा रहे हैं. 12ஆம் வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. 12वां वचन ऐसे कहते हैं, கர்த்தர் நன்மையானதை தருவார். प्रभु यहोवा उत्तम प्रतार देता है. அல்லேலூயா. आमीन. ஆண்டவர் நன்மையானதை தருவார். प्रभु यीशु मसीह भलाई का काम हमें करने वाला है. ஆண்டவர் நமக்கு என்ன நன்மையோ அதை தருவார். जो भलाइयों का जरूरत है उसी को प्रभु हमको प्रकट करने वाला है. தீமை தரமாட்டார். वो गलतियां हमारे साथ नहीं होगी. இயேசுவினிடத்திலிருந்து தீமை நமக்கு வராது. यीशु के ओर से बुराइयां हमें आना पहुंचेगी. ஆண்டவர் நல்லவர். हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है. வேதம் சொல்லுகிறதை கவனியுங்கள். बाइबल ऐसे कहती है, கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है. கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है. அநேக நூற்றுக்கணக்கான வசனங்கள் அப்படி சொல்லுகிறது. इस बाइबल में हजारों वचन परमेश्वर के बारे में प्रकट करती है. கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है, भलाई करने वाला है. அவர் நம்முடைய தேவன். वो हमारा खुद का परमेश्वर है. அவர் நன்மையானதை தான் நமக்கு தருவார். वो सदैव भलाइयों का काम को ही प्रकट करता है. இந்த நாளிலிருந்து உங்களுக்கு நன்மையை தரப்போகிறார். आज से परमेश्वर की ओर से आपको भलाइयां प्रकट होने वाला இந்த है. வசனத்தை நீங்கள் கேட்பதினால் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும். इस वचन को सुन रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर की ओर से आपको भलाइयां होने जा रहे हैं. எந்தெந்த வழியில் தேவன் நமக்கு நன்மை தருவார்? जिस प्रकार रीति से परमेश्वर हमें आशीष करता करके हम आज खोजने जा रहे हैं. ஆண்டவருடைய வசனத்தின் வழியாய் நாம் கவனிக்க இருக்கிறோம். जब हम वचन के द्वारा इस आशीष को पाने जा रहे हैं. பிரியமானவர்களே, मेरे प्रिय भाइयों, ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை குறித்து யோசிக்கிறார். ये जो परमेश्वर है हर वक्त हमारा बारे में वो चिंतित रहता है. நான் படைத்த ஜனங்களுக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டும். जो मैंने मनुष्य को सृष्टि किया है उनको मैं भलाई करना करके वो सोचते रहता है. அவன் தீமைக்குள்ளாய் மாட்டிக்கொள்ள கூடாது. वो बुराइयों में ना फंसना है. தூதர்கள் தீமைக்குள்ளாய் மாட்டிக்கொண்டார்கள். जब दूधों इकट्ठा में वो फंस गए हैं, ஒரு குரூப் தூதர்கள், एक झुंड जो स्वर्गीय दूध है, தேவனால் சபிக்கப்பட்டு அவர்கள் பிசாசாய் போனார்கள். परमेश्वर की ओर से साप पाकर वो शैतान बन गए हैं. பிரியமானவர்களே, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, பிதாவானவர் என்ன சொல்லுகிறார்? हमारा पिता परमेश्वर क्या कहता है? பிதாவை குறித்து தேவன் என்ன சொல்லுகிறது? ओ बाइबल पिता परमेश्वर के बारे में क्या प्रकट करती है? யாக்கோப்பு 1:17 வாசித்தால், याकूब पहला अध्याय 16वां वचन में ऐसे लिखा है, நன்மைகள் அனைத்தும் பிதாவினிடத்திலிருந்து வருகிறது. भलाइयों जो हम प्राप्त करते हैं वो पूरा परमेश्वर की ओर से आता है. பரலோகத்திலிருந்து வருகிறது. वो स्वर्ग से हमको प्रकट होता है. நன்மைகள் என்னவோ जितने भी भलाइयां हैं அது பரலோகத்திலிருந்து வருகிறது. वो स्वर्ग से निकल आती है. பிதாவினிடத்திலிருந்து வருகிறது. वो प्रभु
परमेश्वर से आती है। பிதாவானவர் நமக்கு நன்மைகளை தருகிறார். ये जो स्वर्ग में पिता है वो भलाइयों को हमको बेचता है। ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல பரிசுகளை தருகிறார். वो अच्छा गिफ्ट को देता है। ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல ஈவுகளை தருகிறார். वो अच्छा फल को देता है। பிரியமானவர்களே, मेरा प्रिय भाई और बहन, இப்ப நம்ம காற்று இருக்கிறது, हम श्वास लेते हैं, இது பிதாவானவர் நமக்கு ये தந்திருக்கிறார். जो हवा है ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। ஈவாய் தந்திருக்கிறார். देख लिए वो गिफ्ट के रूप में मिला है, இலவசமாய் தந்திருக்கிறார். वो फ्री मिलता है हमको। பிரியமானவர்களே, காற்றை நம்ம யாராவது காசு கொடுத்து நாம் நுகர்கிறோமா? हमसे कोई पैसा देकर ये हवा को श्वास लेते हैं क्या? இல்லை இல்லை இல்லை, नहीं नहीं नहीं, தேவன் ஈவாய் கொடுக்கிறார். ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। அதுபோல वैसे ही ஆண்டவர் நன்மைகளை வேதத்தின் வழியாய் நமக்கு தருகிறார். बाइबल के द्वारा परमेश्वर भलाइयों को वो देने वाला है। நாம் அதை இந்த நாட்களிலே தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். इन दिनों में इस भलाइयों के बारे में हम लगातार सुनते रह रहे हैं। சகோதரனே சகோதரியே, கவனியுங்கள். मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए, உங்களிடத்தில் தான் தேவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். आपको ही परमेश्वर बात करता है। நீங்கள் மனம் போல ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். आप जैसे आपका मन कहती है उसी की चाल चलन में आप चलते रहते हो। மாம்சீகத்தின்படி நீங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். मांस क्या कहते हैं उसकी ओर से आप चलते रहते हो। ஆனால் தேவன் உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்க விரும்புகிறார். बल्कि मेरा परमेश्वर आपको भलाइयों को देने वाला है। நன்மைகளை திரளாய் தருவார். वो इतना बहुतायत से भलाइयों को देने के लिए वो तैयार है। நன்மைகளை ஏராளமாய் தருவார். वो ज्यादा से ज्यादा भलाइयों को देने के लिए वो इच्छुक है। அதற்காகவே அவர் ஆசாரியரானார். वो इसी कारण मेरा प्रभु यीशु मसीह वो आचार्य बन के आया है। நீங்கள் கவனித்தீர்கள் என்றால், यदि आप बाइबल का एक वचन को सुनोगे तो எபிரேயர் 9:11 இப்படி சொல்கிறது. इब्रानियों 9 का 11 वचन ऐसे लिख रखा है, நன்மைகளை கொடுக்கும்படியாக வந்த பிரதான ஆசாரியன், वो भलाइयों को प्रकट करने के लिए आया हुआ यीशु मसीह एक प्रधान आचार्य कहता है। பிதாவானவர் நன்மையை அனுப்புகிறார். देख लीजिए, स्वर्ग का पिता भलाइयों को भेजता है, ஆனால் பூமியிலே நன்மைகளை கொடுக்கும்படி நியமிக்கப்பட்டவர் இயேசு. बल्कि इस स्वर्ग इस भूमि पे ये भलाइयों को देने के लिए नियुक्त किया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह है। அதற்காகவே இயேசுவை பிதாவானவர் அனுப்பினார். इसी कारण स्वर्ग का पिता आपका उनका एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है। நமக்காக அனுப்பினார். हमारे लिए उन्होंने भेजा है, உங்களுக்காக அனுப்பினார். आपके लिए उन्होंने भेजा है, நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படி அனுப்பினார். हमें आशीष करने के लिए उसने भेजा है, விசேஷமாக நன்மைகளை கொடுக்கும்படி அனுப்பினார். स्पष्ट रूप से भलाइयों को बांटने के लिए भेजा है। பிசாசு தீமைகளை கொடுக்கிறான். जो देख लीजिए, जो शैतान बुराइयों को हमें पहुंचाता है, தீங்குகளை கொடுக்கிறான். वो गलतियों को हमें देता है, பொல்லாப்புகளை கொடுக்கிறான். वो मन में विभिन्न तरह का विचार को डालता है, நோய்களை கொடுக்கிறான். बीमारियों को डालता है। பிசாசானவன் மனிதர்களை குழப்பி பைத்தியக்காரனாய் மாற்றி விடுகிறான். वो ये जो शैतान है लोगों को बटा के उन्हें मेंटल कर देता है। சிலர் மரணத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். इस शैतान के द्वारा कहीं लोग मृत्यु की ओर से चलते हैं, பிசாசின் ஆளுகையினாலே சிலர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள். कहीं लोग पिशाच और शैतान का गुलाब के वजह से हथियार कर देते हैं। பிசாசின் பிடியில் இருக்கிறவர்களை விடுவிக்க இயேசு வந்தார். मेरा प्रभु यीशु मसीह जो शैतान के गुलाम में है, आदीन में है, उन्हें छुड़ाने के लिए आया है। நன்மை செய்வதற்காக வந்தார். वो भलाइयों को प्रकट करने के लिए आया है। அதைத்தான் நாம் அப்போஸ்தலர்களில் வாசிக்கிறோம். इसी को ही प्रेरितों के कामों में हम पढ़ते हैं। 10:38 அப்படி சொல்கிறது. 10वां अध्याय 38 में ऐसे लिखा है, அப்போஸ்தலர் 10:38 நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி நடந்தார். मेरा परमेश्वर यीशु मसीह भलाइयों करने के लिए वो घूमते फिरते रहता है। அவர் நமக்காக நன்மையை கொடுக்கும்
பிரதான ஆசாரியராய் அனுப்பப்பட்டார். वो पहले वो एक प्रधान आचार्य बन के आया है। பிரியமானவர்களே, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ஆண்டவரை நீங்கள் கவனியுங்கள். यीशु मसीह का जीवन को थोड़ा गौर से देखना है। அதன் வழியாக அவர் நமக்கு என்ன செய்கிறார் என்பதை கவனியுங்கள். उनके जीवन की ओर से द्वारा वो क्या करता है हमको। சங்கீதம் 65 நாளை வாசிக்கிற போது भजन संगीता 65 का 4 को आप पढ़ोगे तो ஆண்டவர் பூமியிலே சபையை உண்டாக்குகிறார். ये परमेश्वर इस पृथ्वी में एक झुंड गलीशिया को बनता है। அந்த சபையை ஏன் உண்டாக்கினார்? क्यों इस झुंड को उन्होंने चुना है? சபையிலே எல்லாரும் கூடி வர வேண்டும். इस कारण है कि इस गलीशिया में सभी लोग एकत्रित होना है। அங்கே இயேசு அங்கே மக்களோடு பேச வேண்டும். उस बीच में परमेश्वर उनके द्वारा बात करना है। ஆலயத்திலே அவர் பேசுகிறார். वो गलीशिया के द्वारा वो बात करता है। சங்கீதம் சொல்லுகிறது, भजन संगीता लिखा हुआ है, ஆலயத்தின் நன்மையினால் மக்களை திருப்தியாக்குவேன். वो ये गलीशिया का वो भलाई के द्वारा मैं लोगों को तृप्त करूंगा। பூமியின் மக்கள் எங்கே திருப்தி அடைவார்கள்? ये जो पृथ्वी में रहने वाला लोग कहा उनका जीवन में तृप्त होते हैं? ஆலயத்தின் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள். जब वो गलीशिया में आए, उस गलीशिया की ओर से वो भलाइयों से तृप्त होते हैं। பரத்திலிருந்து வருகிற நன்மை இயேசுவின் வழியாய் வருகிறது. ये जो स्वर्गीय पिता से भलाइयां जो आते हैं वो यीशु के द्वारा वो प्रकट होता है। இயேசு தம்முடைய ஆலயத்தின் வழியாய் ஜனங்களை திருப்தியாக்குகிறார். यीशु मसीह जो गलीशिया में वीर राजमान कर रहा है, वो गलीशिया के द्वारा वो भलाइयों को बांटता है। ரோமர் 13 நாளை வாசித்தால் रोमियो पुस्तक में 13 और 4 का वचन में நன்மையை கொடுக்கும் தேவ ஊழியக்காரர்களை சபையிலே இயேசு உண்டாக்குகிறார். देख लीजिए, गलीशिया में जो भलाइयों को बांटने वाला वो संगति लोगों को परमेश्वर ने बनाया है। பிரியமானவர்களே, मेरे प्रिय भाई और बहनों, எப்படி எல்லாம் தேவன் நமக்கு நன்மை செய்யும்படி இங்கே செயல்படுகிறார். देख लीजिए किस किस रूपों में परमेश्वर हमको भलाई करने के लिए वो सोचकर वो काम कर रहा है। சர்வவல்ல ஆண்டவருடைய நன்மைகள் நமக்கு எப்படி வருகிறது பாருங்கள். सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भलाया किस द्वारा वो आता है, आप देख लीजिए। பிரியமானவர்களே, मेरे प्रिय भाई और இயேசுவை சார்ந்திருந்தால் உனக்கு நன்மை கிடைக்கும். जब अब यीशु मसीह की ओर से विश्वास करके रखोगे तब आपको भलाइया प्रकट होता है। ஆலயத்தை சார்ந்திருந்தால் உனக்கு நன்மை கிடைக்கும். जब आप गलीशिया में एक सदस्य बन जाते हो तब आपको आशीष मिलता है। ஆலயத்திலே வருகிறவர்களுக்கு தேவன் தம்முடைய வசனத்தை சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். जो कोई वो गलीशिया के अंदर आते हैं, मंदिर में आते हैं, उनको परमेश्वर उनका आशीष का वचन को प्रकट करता है। பிரியமானவர்களே, मेरे प्रिय भाई और बहन, நமக்காக அவர் செயல்படுகிறார். ये परमेश्वर हमारे लिए वो काम करता है மக்கள் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ताकि लोगों भलाइयों से भरे। பிரியமானவர்களே, प्रिय भाइयों और बहनों, பெற்றோருக்கு நன்மை கிடைத்தால் हमारा पिता माता को भलाई मिले तो பிள்ளைகளுக்கு நன்மை கிடைக்கும். ओ उनके द्वारा पूरा बच्चों को मिलती है। பிள்ளைகளுக்கு நன்மை கிடைத்தால் जो बच्चों को मिलने वाला जो भलाइयां है, சந்ததிக்கு நன்மை கிடைக்கும். उनका वंश को वो प्राप्त होते हैं। அல்லேலூயா, आमीन, அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் அப்படித்தான் செயல்படுகிறார். ये जो मेरा परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। ஒரு பொல்லாத மனிதன் சபைக்குள்ளே வந்து விட்டால் जो बुराई लोग गलीशिया का अंदर वो आते वक्त அவன் விசுவாசத்தினால் நீதிமானாய் மாறுகிறான். वो विश्वास के द्वारा वो नीतिमान बन जाता है। பிரியமானவர்களே, मेरे प्रिय भाई और ஒரு बहनों, பாவியான மனுஷன் சபைக்குள்ளே வந்து விட்டால் जब एक पापी गलीशिया का अंदर वो आ जाते हैं, இயேசு கிறிஸ்துவின் வசனத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் சுத்திகரிக்கப்படுகிறான். वो परमेश्वर यीशु मसीह का वचन और लहू के द्वारा वो शुद्ध हो जाता है। அவன் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறான். वो परिशुद्ध मनुष्य कहलाता है। அவன் தேவனால் நீதிமானாக்கப்படுகிறான். वो परमेश्वर की ओर से वो नीतिमान बन जाता है। जब भी बन जाता है। प्रार्थना करें। இயேசுவின் நாமத்தினாலே
प्रभु यीशु मसीह का नाम से கர்த்தாவே செய்திகளை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். जो कोई इस सुसमाचार को सुने हैं उन सबों को आशीष करे। யாரெல்லாம் இதை இப்ப கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, அவர்கள் என்னென்ன விண்ணப்பம் செய்கிறார்களோ जो कोई विनतियां वो लोग आपकी चरणों में रखते हैं, எல்லாவற்றிலும் நன்மை உண்டாகட்டும். उनका विनतियां सुनाकर उन्हें भलाई से भरपूरी करके இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं। ஆமென். आमीन। கர்த்தர்